افغان طالبان رجیم کی جانب سے فتنہ الخوارج کی پشت پناہی کا عالمی اعتراف۔ افغانستان میں برطانیہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ لنزے نے افغان ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، فتنہ الخوارج ایک دہشت گرد گروہ ہے جسے افغانستان سے حمایت مل رہی ہے۔ فتنہ الخوارج کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کی ضرورت ہے۔ وینزویلا میں رواں صدی کا سب سے خوفناک زلزلہ 1 منٹ کے اندر آنے والے 2 شدید جھٹکوں سے زمین لرز گئی۔ 7.2 اور 7.5 کے زلزلوں سے کئی شہر اجڑ گئے۔ دارالحکومت کراکس میں بھی کئی عمارتیں زمین بوس، 164 افراد ہلاک اور 1000 سے زائد زخمی۔ 11,000 سے زائد لاپتہ افراد کی نشاندہی، لوگوں کی بڑی تعداد کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات، اموات کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز ہونے کا خدشہ، ملک میں ایمرجنسی نافذ، امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ہنستے بستے شہر لمحوں میں نیست و نابود، وینزویلا پل بھر میں غم اور خوف کی تصویر بن گیا۔ 1 منٹ میں 2 زوردار زلزلوں سے ہر طرف قیامت برپا۔ 7.2 شدت کا زلزلہ مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے آیا۔ لوگ سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ 7.5 شدت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ پہلا زلزلہ دارالحکومت کراکس سے 168 کلومیٹر دور 22 کلومیٹر کی گہرائی پر تھا۔ تاہم دوسرا زلزلہ زیادہ تباہ کن ثابت ہوا، جس کی گہرائی صرف 10 کلومیٹر تھی۔ سب سے زیادہ تباہی ریاست لاگوائرا میں ہوئی، جہاں زیادہ تر عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں۔ وینزویلا کے قائم مقام صدر نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی، امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ زلزلہ اتنا شدید تھا 1700 کلومیٹر دور ایمیزون کے جنگلوں میں بھی محسوس کیا گیا۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق اب تک 10,000 سے زائد لاپتہ افراد کی نشاندہی ہو چکی ہے، جبکہ امریکی جیولوجیکل سروے نے ہلاکتوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کرنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ وینزویلا میں خوفناک زلزلے نے چند لمحوں میں تباہی پھیر دی، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، ہستی بستی بستیاں اجڑ گئیں، نظام زندگی مفلوج، ہزاروں مکانات گر گئے، سڑکیں تباہ، بجلی بند، مواصلاتی نظام ناکارہ ہو گیا۔ شہریوں پر لرزہ طاری ہے، پتھرائی آنکھیں، چہروں پر خوف نمایاں ہے۔ قیامت سے پہلے قیامت، کانپتی زمین نے شہروں کو قبرستان بنا دیا۔ چند لمحوں کی تھر تھراہٹ نے بستیاں اجاڑ دیں، دھرتی لرزتے ہی سب کچھ کھنڈر بن گیا۔ خوفناک زلزلے نے ہر طرف تباہی پھیر دی، بلند و بالا عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، گھر گر گئے، سڑکیں ٹوٹ گئیں، بازار مٹ گئے، ایئرپورٹ پر بھی تباہی، بجلی منقطع، مواصلاتی نظام تباہ۔ چند لمحوں میں سارا نظام درہم برہم، زمین کی الٹ پلٹ نے آنن فانن سب کچھ بکھیر کر رکھ دیا۔ کہیں چھلکتی آنکھیں تو کہیں چیخو پکار، چہروں پر خوف، ہر طرف گھبراہٹ اور بے یقینی کا عالم۔ کئی جیتے جی منو مٹی تلے دب گئے اور کئی ہنستے بستے انسان موت کی آغوش میں سو گئے۔ زندہ بچنے والوں کے سروں سے چھت چھن گئی، زمین پر سے بھی ان کا اعتبار اٹھ گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں شدید زلزلے سے تباہی اور انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، سوگوار خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، مشکل گھڑی میں وینزویلا کے عوام اور حکومت کے ساتھ ہمدردی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وینزویلا میں زلزلے سے ہونے والی تباہی اور نقصان پر دکھ اور متاثرین کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، زخمی کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر عالمی برادری کا اظہار افسوس، ہر ممکن مدد کی پیشکش۔ امریکی صدر نے امدادی ٹیمیں بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ ایران، ترکی، آسٹریلیا، چین، فرانس، قطر اور اسپین سمیت کئی ملکوں نے مدد کی پیشکش کر دی۔ وینزویلا میں خوفناک زلزلہ، عالمی برادری کا اظہار افسوس، ہر ممکن مدد کی یقین دہانی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خوفناک زلزلے کے بعد حکومتی ایجنسیوں کو وینزویلا کی مدد کے لیے ٹیمیں بھیجنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے، ہم اپنے نئے اور عظیم دوستوں کے لیے حاضر ہیں، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بولے، امریکہ مشکل وقت میں وینزویلا کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی وینزویلا میں زلزلے میں جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وانگ نے وینزویلا کی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا۔
और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। चीन ने भी हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश की। हिस्पानवी हुकूमत ने बयान में कहा वो भी हंगामी इमदाद की फराहमी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आलमी एजेंसियों से राब्ता कर रहे हैं। फ्रांस, कतर, कोलंबिया, क्यूबा, पानामा, ब्राजील, अर्जेंटाइन और यूरुग्वे ने वेनेजुएला को मदद की पेशकश की है। 21वीं सदी में दुनिया में कई तबाहकुन ज़लज़ले आए। 2004 में इंडोनेशिया में आने वाला ज़लज़ला सबसे तबाहकुन था। ज़लज़ले और सुनामी से 2,80,000 अमवात हुई। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान में आने वाला ज़लज़ला मुल्क की मुहलिक तरीन कुदरती आफात में से एक था। दुनिया के तबाहकुन ज़लज़लों पर नज़र इस रिपोर्ट में। 21वीं सदी के आगाज में ही 26 जनवरी 2001 को भारतीय रियासत गुजरात में 7.6 शिद्दत का जलजला आया, जिससे 20,000 अमवात हुई। 26 दिसंबर 2003 को ईरान का शहर बम 6.6 शिद्दत के जलजले से लरज उठा। 34,000 से ज्यादा इंसान लुक़्मा अजल बन गए। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में आने वाला जलजला इंसानी तारीख की तबाहकुन कुदरती आफात में से एक था। जलजले और सुनामी से 2,80,000 अफराद जान से गए। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान की तारीख का तबाहकुन जलजला आया। 7.6 शिद्दत के जलजले से कश्मीर, बालाकोट और दीगर शहरों में 87,351 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 15 अगस्त 2007 को चीन में जलजले से 87,587 हलाकतें हुई। 12 जनवरी 2010 को हेटी में 60 शिद्दत का जलजला 1 लाख से ज्यादा हलाकतों का बाइस बना। 11 मार्च 2011 को जापान 9.1 शिद्दत के जलजले से लरज उठा। 19,000 से ज्यादा अमवात हुई और फुकुशिमा का एटमी हादसा भी पेश आया, जिससे 1.5 लाख अफराद बेघर हो गए। नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को आने वाले जलजले से 9,000 से ज्यादा इंसान हलाक हुए। तुर्किया में 6 फरवरी 2023 को 7.7 शिद्दत का जलजला 62,000 अमवात का बाइस बना। गुज़िश्ता साल 28 मार्च को म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 शिद्दत के जलजले से 6,000 अफराद हलाक हुए। ईरान का आबने हुर्मस पर फीस की मद में अरबों डॉलर कमाने का मंसूबा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी और दीगर खिदमात की मद में आबने हुर्मस से सालाना 40 अरब डॉलर की आमदनी हो सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान और ओमान आबने हुर्मस की सिक्योरिटी के लिए मुज़ाकरात जारी रखेंगे। इस हवाले से हमसाया ममालिक के साथ मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर में शरपसंद अनासिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रास्तों की बंदी से मुतलिक BBC की खबर हक़ाइक़ के मनाफी है। आज़ाद कश्मीर के तमाम रास्ते खुले हैं। IG लियाकत अली मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी खबर पर रद्द-ए-अमल के बजाय उसकी तस्दीक क्या करें। किसी ट्रांसपोर्ट को आने जाने से नहीं रोका। कलदम तंजीम के शरपसंद रोड ब्लॉक करते हैं, खुराक की गाड़ियों को लूटते और ड्राइवर्स पर तशद्दुद करते हैं। ग्लोबली मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, अफवाहसाजी और AI जनरेटेड कंटेंट के ज़रिए नए से नए बयानिए बनाए जाते हैं और हकीकत जो है उसको मसख करके अपने ज़ाती मफादात के लिए दिखाया जाता है। BBC has done this and they have published a baseless article based on vested interest and merely on propaganda। तमाम रास्ते आज़ाद कश्मीर आने और जाने वाले खुले हैं सिवाय रावलाकोट के थोड़े से एरिए के। कहीं कहीं जो कालादम तंजीम के शरपसंद हैं वो रोड ब्लॉक करते हैं, वो इस तरह फूड आइटम्स की जो गाड़ियां हैं उनको लूटते हैं, उनके ड्राइवरों को मारते हैं। उसकी वजह से शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बाशऊर अवाम ने कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामूलात ज़िंदगी रवां-दवां हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भिम्बर, मीरपुर, नीलम, कोटली समेत मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी मराकज़ खुले हैं और ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ भी मामूल के मुताबिक जारी हैं। वज़ारत इत्तलात व नशरियात का आज़ाद जम्मू कश्मीर से मुतालिक जाली खबर पर BBC उर्दू से शदीद एहतजाज। BBC उर्दू के गैर मुसद्दिका और बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मबनी रिपोर्ट शाया करने पर बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवा दी। वफाकी वज़ारत इत्तलात का कहना है कि रिपोर्ट में सरकारी हक़ाइक़ और रिकॉर्ड पर मौजूद मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया गया। गैर तस्दीक शुदा दावों की अशात अफसोसनाक है। BBC उर्दू की जानिब से गैर मुसद्दिका खबरों की अशात एक रुझान बनता जा रहा है। गुमराहकुन रिपोर्टिंग के तदारुक के लिए फौरी इस्लाही इक़दामात नागुज़ीर हैं। लाशें गिराकर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं। इंतशार फैलाने वाले खुदा का खौफ करें। आज़ाद कश्मीर के वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी रफ़ीक नैयर बोले जो भी तनाज़ा है वो बातचीत से ही हल होगा। चौधरी कासिम मजीद ने कहा हमारी मंजिल सिर्फ और सिर्फ तकमील पाकिस्तान है।
जो उनकी वीडियोस आ रही हैं नफरत अंगेज तकारीरें उनकी, अगर हमने लाशें गिरा कर फिर जाके टेबल पे बैठना तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा है। आज़ाद कश्मीर की आवाम पाकिस्तान के साथ है, हमारी मंजिल तकमील पाकिस्तान है। तो इंटरनेशनली आप देखें, आपने आज़ाद कश्मीर का नाम डुबो के रख दिया। ये उनकी कोर डिमांड थी कि इलाके पाकिस्तान की शिक को आप निकाल दें, किसी एक शख्स के कहने पर ये शिक नहीं निकल सकती। पाकिस्तान है तो हमने, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फिर कौन सी चीज़ें ऑपरेट हो रही। उस फौज के सिपह सलार के खिलाफ बात कर रहे हैं जब मई में मोदी ने अटैक किया था शवाई और कोटली के मकाम पर। अगर ये खाकी वर्दी ना होती तो आपको पता लग जाता महफूज और काबज में फ़र्क होता है। जो LOC के उस पार फौज बैठी है वो काबज फौज बैठी है, जो इधर फौज बैठी है स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो महफूज फौज है। इंक्रीज एंड डिक्रीज द सीट्स ऑफ द असेंबली, ये प्योरली प्रोजेक्टिव है आज़ाद कश्मीर असेंबली का थ्रू अमेंडमेंट। 2/3 मेजॉरिटी में हमें 37 वोट चाहिए थे। नो लीग अमेंडमेंट पर उन्होंने एग्री नहीं किया। हर मामले का एक हल है कि आप नेगोशिएशन की टेबल पर हैं, किसी वक्त जहाँ भी आप मुज़ाकरात के लिए आना चाहें, आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है हर वक्त हर लम्हा तैयार है। कलदम अवामी एक्शन कमेटी के अरकान साथ छोड़ने लगे। कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी ने लातालुकी का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों से कलदम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करने की अपील कर दी। वीडियो पैगाम में कहा, अवामी हुकूक और आटे बिजली की कीमतों से शुरू तहरीक का रुख मोड़ दिया गया। बैरूनी इमा पर अफरा तफरी फैलाई जा रही है। कश्मीरी मेरा नाम है, मैं जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोर कमेटी मेंबर हूँ मुजफ्फराबाद से। सबसे पहले ये बात है कि चूंकि ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कलअदम करार दे दिया गया है तो मैं इससे अब चलादगी का ऐलान कर रहा हूँ। दूसरी बात जो है मैं करना चाहता हूँ अपने नौजवानों से और बाकी लोगों से अहबाब से, वो ये है कि हम खालिस्तन अवामी हकूक के लिए जदोजहद करते रहे। जो हमने जो रेट्स लिए बिजली के वो पूरे पाकिस्तान में रेट्स नहीं है। फिर जो ये आटे की जो सब्सिडी ली ये पूरे पाकिस्तान में पंजाब में भी नहीं है जहाँ गंदम पैदा हो रही है। शुरू में जो बिजली के हवाले से या आटे या दीगर टैक्सेस के हवाले से बात हुई उसमें मैं वर्किंग करता रहा, मेरे पास जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो मैं देता रहा और मेरा इनपुट बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही था। इससे हटकर जो बाकी बातें हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं जी के ये फौजें यहाँ से निकल जाएं या कोई ये कहे जी कि पासपोर्ट नहीं चाहिए, ID कार्ड नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल ही फजूल और लायानी किस्म की बातें हैं और इस पे तो हम कभी गए ही नहीं और ना ये हमारे वहम गुमान में बात। इस तरह की बातें करना ये मैं समझता हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो मोस्टली लोग हैं उनके जहन में ये बातें नहीं है और ना मेरे अपने जहन में बातें हैं इस तरह की कोई, और ना हम कभी इस तरफ गए हैं। हम खालिस्तन अवामी हकूक और जदोजहद के हवाले से बात करते रहे और आइंदा भी करेंगे, लेकिन ये जो लाइन है ये लाइन कतन आज़ाद कश्मीर के लोगों की भी नहीं है और मेरी तो बिल्कुल नहीं है ये लाइन। ये जो बाकी चीजें हैं ये बाकी बातें जो हैं ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट है और इससे तो बिल्कुल एग्री किया ही नहीं जा सकता और मैं तो पर्सनली इससे कोई एग्री नहीं करता। और हमारे जो दोस्त पूंछ में बैठे हैं, बाकी जगहों पे बैठे हैं, जो अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई गुज़श्ता दिनों और जो लोग वहां बैठे हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि वो फर्दर प्रोसीड न करें। मजीद कोई अलमिया पैदा करने के बजाय ये चीजें बाहमी मुज़ाकरात से और बातचीत से हल की जाएं ताकि हमारा जो इलाका जिस तरीके से पुरअमन मशहूर है पूरे पाकिस्तान के अंदर ये दोबारा अपनी डगर पर आ जाए, अपने रास्ते पर आ जाए। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से फितनल खवारिज की पुश्त पनाही का आलमी एतराफ़। अफगानिस्तान में बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड लिंसे ने अफगान TV को इंटरव्यू में कहा, फितनल खवारिज एक दहशतगर्द गिरोह है जिसे अफगानिस्तान से हिमायत मिल रही है। फितनल खवारिज के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात की जरूरत है। बिलावल भुट्टो के बल्दियाती इलेक्शन के मुतालबे पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कराची जैसे बल्दियाती इलेक्शन से बेहतर है इंतखाबात ना करवाए जाएं, लाहौर में कराची जैसा निज़ाम नाफिज ना किया जाए। शर्जील मेमन का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, ख्वाजा साहब कराची के निज़ाम पर सवाल ना उठाएं, पहले पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन ना करवाने की वजह बताएं। आप ये कर रहे हो कि बल्दियाती निज़ाम करो, बल्दियाती निज़ाम का इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस करवाओ। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में तकरीर के बाद सियासी माहौल गर्म। बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने। बिलावल भुट्टो का बल्दियाती इंतखाबात तक का मुतालबा दुरुस्त है, लेकिन कराची तर्ज पर बल्दियाती इलेक्शन करवाने से बेहतर है इंतखाबात न करवाए जाएं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, खुदारा लाहौर पर कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम नाफिज न किया जाए। कोई तफसील जानना चाहता है तो हाफिज नईम या खालिद मकबूल से पूछ ले। साद रफीक के बयान पर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, कराची के बल्दियाती निज़ाम पर सवाल उठाने से पहले अवाम को पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन न कराने की वजह
बताएं, फिर दूसरे सूबों के जमहूरी निज़ाम पर लेक्चर दें। पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका ट्रांसपोर्ट कमेटी फाल करने पर इत्तेफाक। अहम इजलास में वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का खित्ते में अमन कायम होने पर इजहार मुसर्रत, ईरानी अवाम के पुख्ता अज़्म व हिम्मत की तारीफ की। कहा मुस्तकबिल में दोनों मुल्कों के रोड और रेल राबते मजीद मजबूत होंगे। ईरानी वज़ीर ट्रांसपोर्ट फरजाना सादी कहती हैं, पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर हिमायत और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान के दौरे पर आई ईरानी वज़ीर ट्रांसपोर्ट फरजाना सादिक की वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान से वफूद की सतह पर अहम बैठक। पाकिस्तानी वफ्द में वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, वज़ीर तजारत जाम कमाल और वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार शामिल। मुतलका पाक ईरान सीनियर हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का खित्ते में अमन कायम होने पर इजहार मुसर्रत, बोले ईरानी अवाम के पुख्ता अज़्म और हिम्मत को सराहते हैं। ईरानी वज़ीर फरजाना सादिक का जंग रुकवाने और अमन मुआहदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर हमायत और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। ईरानी वफ्द से गुफ्तगू में अब्दुल अलीम खान ने कहा मुस्तकबिल में पाक ईरान रोड और रेल राब्ते मजीद मजबूत होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान जमीनी रवाबित की मजबूती से तजारती मौके बढ़ेंगे। ईरानी वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने दोनों ममालिक के दरमियान ट्रकों और कंटेनर्स की क्लियरेंस के मसाइल का मामला उठाया। वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक मसाइल को फौरी हल किया जाएगा। इजलास में मुख्तलिफ अहम तजावीज़ पर गौर किया गया। दोनों वफूद ने पाक ईरान मुश्तरका ट्रांसपोर्ट कमेटी फाल करने पर इत्तफाक किया। ये भी तय पाया कि पाक ईरान बॉर्डर पर हल तलब मसाइल के लिए मुश्तरका इक़दामात किए जाएंगे। नवासे रसूल जिगर गोश शाह बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके रफ़्क़ा की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में नवी मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले गए। कराची, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी में जुलूस मंजिल पर पहुंचकर ख़त्म हो गए। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रही। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद, अज़ादारों का नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके रफ़क़ाए कार को खिराज अक़ीदत। शहर शहर 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले गए। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। मुक़र्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनियन ईरानियन खारादर पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों और अतराफ में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रही। रावलपिंडी में चिटियाँ हटियाँ से बरामद होने वाला जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल कॉलेज रोड पर इख्तिताम पजीर हुआ। पेशावर में मरकजी जुलूस हुसैनिया हॉल इमाम बारगाह कैंट से बरामद हुआ। मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ उसी मकाम पर खत्म हुआ। कोयटा में शबीह जुलजनाह का जुलूस इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा से सख्त सिक्योरिटी हिसार में बरामद हुआ। जुलूस शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ उसी मकाम पर खत्म हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इमाम बारगाह सनाशरी से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस कुछ देर के बाद वापस इसी मकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। अलम, शबीह जुलजना और ताज़िये जुलूस में शामिल हैं। मजीद हमें बताएंगे शहजाद अली। बाद में 9वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस G6 इमाम बारगाह असना अशरी से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ यहीं पर इमाम बारगाह असना अशरी में पजीर होगा। जुलूस इस वक्त जो है वो पोली क्लिनिक हॉस्पिटल के पास पहुंचा है। वहां से हकीम लुकमान रोड से बरास्ता जुलूस यहां पर पहुंचेगा। आज दिन भर यहां पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम रहे। जुलूस के तमाम रास्तों को जो है वो कंटेनर की आहनी दीवार बनाकर महफूज बनाया गया था। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को जो है वो दाखिले की इजाजत नहीं दी गई थी। 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से यहां पर बनाई गई थी। लाहौर में पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। मालूमात हासिल करते हैं नुमाइंदा समा फहद भट्टी से, जो कि इस वक्त जुलूस के साथ मौजूद हैं। फहद, आप जुलूस के साथ मौजूद हैं, किस जगह पहुंचा है जुलूस, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे देख रहे हैं आप? का मरकजी जुलूस लाहौर में इस्लामपुरा के इलाके पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ बाबा ग्राउंड, उसके बाद सेक्रेटेरिएट चौक और सेक्रेटेरिएट चौक से पुरानी अनारकली से होता हुआ खैमा सादात पहुंचा, जहां पर जो है वो अज़ादरान हुसैन की जानिब से मातमदारी की गई, नोहाखानी की गई और मजलिस बर्पा होने के बाद जो है ये जुलूस अब दोबारा अपने इन्हीं रवायती रास्तों से होता हुआ वापस पांडू स्ट्रीट पहुंचकर इस्लामपुरा के इलाके पांडू स्ट्रीट में पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। 8000 से ज़्यादा पुलिस अफसरान एहलकार जो है वो जो 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस है इसकी सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं। उसके अलावा जुलूस के जो रास्ते हैं, जो रवायती रास्ते हैं, इनको इन तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर और खारदार तारे लगाकर मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कंटेनर्स लगाए गए हैं, खारदार तारे लगाई गई हैं, ट्रैफिक के लिए बंद किया गया रूट्स को। फादा आपने अपडेट किया।
आपका शुक्रिया। वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने बीबी पाक दामन के मज़ार का दौरा किया। मज़ार पर सिक्योरिटी इंतजामात और ज़ायरीन के लिए सहूलियात का जायजा लिया। सेफ सिटी हेडक्वार्टर में सीनियर वजीर को मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। महकमा दाखिला के कंट्रोल रूम में सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर से सिक्योरिटी सूरत हाल पर लाइव ब्रीफिंग ली। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्ट सर्विलेंस के जरिए अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, फैसलाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ अज़ला का उन्होंने दौरा किया, मजालिस और जुलूसों के रूट्स का मुआयना किया। उन्होंने कमालिया में ज़िलाई हुकूमत की जानिब से कायम सबील का मुआयना भी किया। शुहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्तान, गुजरांवाला, हैदराबाद और दीगर शहरों में भी मातमी जुलूस निकाले गए। शोहदाए करबला की याद, कई शहरों में नवी मुहर्रम के मातमी जुलूस। मुल्तान में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से बरामद हुआ, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इसी मकाम पर इख्तिताम पजीर हुआ। गुजरांवाला में इमाम बारगाह जागीर अली अकबर से बरामद होने वाले मरकजी जुलूस में साबिक विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर भी शरीक हुए। हैदराबाद में मरकजी जुलूस लतीफ़ाबाद नंबर 5 से बरामद हुआ और मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस वहीं इख्तिताम पजीर हुआ। लड़काना में हिंदू बरादरी ने मजहबी रवादारी की आला मिसाल कायम की। धर्मशाला में शोहदाए करबला की याद में न्याज लंगर का एहतमाम किया गया। साहिवाल, सरगोदा, विहाड़ी, खानेवाल, बहावलपुर, सांगड़, गंदकोट, नौशेरो फिरोज, शिकारपुर, सजावल, हरिपुर, जाफराबाद में भी जुलूस निकाले गए। ईरान और इराक में भी मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी। करबला में अज़ादारों ने ईरान के शहीद रहनुमाओं की तस्वीर उठाकर जुलूस में शिरकत की। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े से अज़ादारों का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर अज़ादारों ने शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी मजलिस अज़ा में शिरकत। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, बनू में मुल्ज़िमान की घर में घुसकर फायरिंग, गोलियां लगने से मां और 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में ले लिया। जाँ बहक और जख्मी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। और कराची के इलाके सुजानी टाउन में जुल्म की इंतहा, वालिद के तशद्दुद से 10 बरस का बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बीवी से झगड़े पर शौहर ने बच्चे को मारा पीटा। बाप और चचा गिरफ्तार। 10 साल के हैदर के मुबैना कत्ल केस का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वालिद और चचा ने बच्चे को बांधकर तारों से मारा, जिसके नतीजे में बच्चा जान से चला गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके कायदाबाद में 3 साल की बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने मजीद 4 मुश्तबा अफराद के DNA सैंपल लैब भिजवा दिए। ज़राए के मुताबिक पुलिस एक DNA की रिपोर्ट लेने कराची यूनिवर्सिटी पहुंची है, जिसके बाद मुलजिम की गिरफ्तारी का इम्कान है। पुलिस ज़राए के मुताबिक तरजीही बुनियाद पर DNA टेस्ट करवाया गया। 12 मुश्तबा अफराद के सैंपल लिए जा चुके, जिनमें से 4 इंतहाई मुश्तबा अफराद हैं। 6 अफराद को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। 28 लोगों से तफ्तीश की गई। अब आपको बताएं, चिन्योट के उलमा की डिप्टी कमिश्नर और DPO से मुहर्रमुल हराम के हवाले से मुलाकात। अंजुमन ताजरान चिन्योट के रहनुमा मोहम्मद जमील फ़खरी ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज़ के दौर में वो काम हो रहे हैं जो 70 साल में नहीं हुए। अज़ादार झोलियाँ भरकर उनके लिए दुआ कर रहे हैं। को ये बात पहुंचा दो कि 70 साल में वो काम नहीं हुए जो अल्लाह आपसे को काम ले रहा है। तेरी वालदा की दुआ, तेरे बाप की दुआ की वजह से अगर अहले तशरीह हैं वो झोलियाँ पसार के दुआ कर रहे कि मरियम तुझे हमारी ज़िंदगी भी लग जाए, कि तूने वो काम कर दिए। अहले सुन्नत वल जमात है, अल्लाह जाने को अल्लाह की तरफ से उसकी रहनुमाई हो रही है, कहाँ सबीलें तक लगानी। एक खातून लाहौर में बैठी वो पूरे पंजाब के जैसे अपने आँख से देख रही है। किसी की छोटी सी दिक्कत हम सोचते हैं अपनी मीटिंग में, अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी बात है। अगले दिन सोशल मीडिया पे आ जाती है कि पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने ये ऑर्डर जारी कर दिया। इसलिए नहीं कि वज़ीर आला की तारीफ़ कर रहा, ये मैं हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ कि ये पूरे पंजाब की आवाज़ है। सरगोदा, चिन्योट, फैसलाबाद, लाहौर बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से, अमन कमेटी की तरफ से, अहले तशरीह की तरफ से, उलमाए कराम की तरफ से, ज़िला चिन्योट की तरफ से, ज़िला फैसलाबाद की तरफ से, हमारी तरफ से मरियम नवाज़ बेटी को सलाम कहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का इजलास। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोधा, इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर और जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मंसूबों का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोधा का तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है और इसका इफ्तिताह 15 जुलाई को मुतवक्किल है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल जुलाई में खोलने की तैयारी है। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 15 अगस्त को खोलने की तैयारियों के आखिरी मराहिल में है। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब में बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स लाना उनका मिशन है।
یورپ میں شدید گرمی کی لہر. اسپینش حکام کے مطابق ہیٹ ویو سے اموات کی تعداد 200 سے زائد ہو سکتی ہے. فرانس میں درجہ حرارت 44 ڈگری سے اوپر چلا گیا. برطانیہ میں جمعے کو شدید گرمی کی ریڈ وارننگ جاری. سرے میں گرمی کا 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. درجہ حرارت 37.7 ریکارڈ کیا گیا. بیلجیم میں گرمی کی وجہ سے تفریحی مقامات عوام کے لیے بند کر دیے گئے. اٹلی، یونان سمیت یورپ کے دیگر ممالک میں گرمی کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہیں.